ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, B2D ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಳ್ಗಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಶ್ರೀ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಶ್ರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಶ್ಮಿ, ಶ್ರೀ MA ಹಿಂಡಸ್ಗಿರಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊರ್ವಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ವರದಿ. सना मोहम्मद हुसैन मलगी चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसके ज़रिए आप बच्चों को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? अभी एजुकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी, हर आदमी के हर कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए जितना इम्पोर्टेंस देते हैं वो कम्युनिटी आगे बढ़ जाती है. इस कम्युनिटी में एजुकेशन का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आते आते ऐसे हो कि अब हमारा हालत ऐसा हुआ है, मुसलमानों की हालत ऐसा हुआ है कि दे आर गिविंग लीस्ट इम्पोर्टेंस फॉर द एजुकेशन, इसलिए वी हैव गॉन डाउन. तो इसलिए जो है वी हैव रियलाइज्ड दैट इज एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड इम्प्रूव दिस सोसाइटी ओनली थ्रू एजुकेशन. सो वी शुड डेवलप institutions, we should start educational institutions imparting education to all class of people. It is not only just BA, BSc, but even professional as well as other this thing courses. And we are a poor community. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಡತನದಿಂದ ಭಾಳ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾದ ಭಾಳ ಅದ್ರ ಮಸೀದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬೆಳೀತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಇವನ್ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಹಿತ ತಗೊಳ್ಳೋದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನುಕ್ಸಾನ ಆಯಿತು, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ. ಇವೇನು ತ್ರಾಸ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ದೊಳಗೆ, ನಮಗೆ ಒಳಚಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನದ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನದ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ is a public charitable trust. It does not cater to one it caters to all the religious communities. All ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟ 50% ತನಕ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೂರ್ ಅಂಡ್ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 50% ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ, ಇವನ್ ಡ್ರೆಸ್, ಊಟ, ವಸತಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 600 ಹುಡುಗರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ. ಈಗ 50% ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೋಗ್ಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಲುವಾಗಿ. सना शाहीन के रिकग्निशन में किया है, ये करने का आपका असली मौजू क्या था? सना एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 20 साल से
जनाब मोहम्मद हुसैन मलकी साहब शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक के लिए बड़ी देन है इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन कैंपस बना दिए। तो बाद जो है 2019 में हमारा मुलाकात हुआ और मलकी साहब का ये था कि इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज चेयरमैन इस चैरिटेबल ट्रस्ट का एम मलकी साहब है, मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, खालिद मलगी, अयूब सौनूर और तारिक मुजाहिद, बाकी सारे लोग हमारे साथ मिले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्टी से यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग जैसे टेक ओवर किए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाहीन बिदर इंस्टीट्यूशन, उनके साथ में बातचीत हुआ, उनको भी साथ में लिए, वो भी हमारे साथ में मिला हुआ ट्रस्टी है। तो सना शाहीन इसको जो है सिर्फ पीयूसी जो साइंस कॉलेज है उसको जो है सना शाहीन के नाम से शुरू किए। बाकी सारे जितने भी बीएड है, बीएससी नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग है और पैरामेडिकल कोर्सेस है वो सना का नाम से ही है। लेकिन पीयू साइंस इसीलिए हम लोग चॉइस किए कि आगे बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करने के लिए मेडिकल फील्ड में हो या इंजीनियरिंग फील्ड में हो और बाकी सब मतलब जो कोई भी फील्ड में अगर जाने के लिए साइंस ज़रूरी है, इसीलिए पीयूसी साइंस हम लोग शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ में हम लोगों ने इससे 2 साल पहले हमारे बैचेस 2 बैचेस शुरू हो गए। 15 से 20 पहले बैचेस के जो MBBS सीट मिले, अभी लास्ट बैच में भी 20 के ऊपर मतलब। फैकल्टी का कैसे सर जॉब ऑफर कैसे कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर साइंस का बड़ा कॉम्पिटिटिव है, मेनली जो है फैकल्टीज़ के लिए काफ़ी मतलब जो है कंपटीशन है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करवाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में, आकाश हो, बायजूस हो, तो उस पर मतलब सर्वाइव होना शाहीन की एक मतलब खासियत है कि शाहीन का सिलेबस को बीट करने के लिए मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ, चाहे आकाश हो, बायजूस हो, कोई भी हो, शाहीन का सिलेबस बीट नहीं कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को करके दिखाया। और शाहीन बिदर जो है पूरी कर्नाटक के अंदर नीट स्टूडेंट जो पास होते हैं उसमें 10 से 12% पूरा कर्नाटक के अंदर शाहीन के स्टूडेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है सना शाहीन भी जुड़े। अब शाहीन इंस्टीट्यूशन के ऑलमोस्ट ऑल 13 स्टेट्स में उनके अवेलेबिलिटी है और 70 इंस्टीट्यूशंस है उनके। यहाँ पे आपके जो पीयूसी साइंस में जो ट्रेन होके बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल उनके जो कॉलेजेस में मेडिकल कुछ रिजर्वेशन रखा है क्या उन्होंने? देखिए शाहीन के लिए कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, शाहीन का खुद का मेडिकल कॉलेज नहीं है, बल्कि शाहीन बिदर जो है तकरीबन जो है 5 मेडिकल कॉलेज चलाने के लायक बच्चों को हर साल जो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला देते हैं। ओनली पीयूसी साइंस में ही मतलब कि जो है ये माहिर जो है हम लोग फोकस है। एंड इट्स अ ग्रेट सक्सेस। इवन इफ यू स्टार्ट 1 मेडिकल कॉलेज यू कैन गेट मैक्सिमम 80 to 100 सीट्स। व्हेन वी आर कमिंग आउट विथ 500 स्टूडेंट्स, 500 students are coming out with NEET recognition, they are getting seats। तो 5 मेडिकल कॉलेज चलाने की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन कॉलेज जो आपने एक्रेडिटेशन यहाँ पे आपको लिया है, वो कहीं पे स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए हेल्प करते हैं? बिल्कुल। देखिए मतलब अभी पीयूसी साइंस के बाद में प्लेसमेंट की बात नहीं है। नहीं प्लेसमेंट नहीं, उनको हेल्प कुछ करके उनको मेडिकल का अवेलेबिलिटी। नहीं देखिए मेडिकल का जो क्राइटेरिया है ना, मेडिकल नीट एग्जाम पे मेडिकल सीट्स मिलते हैं। नो रिकमेंडेशन, नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। नीट में जो है ना जो मार्क्स आते हैं कैटेगरी पर गवर्नमेंट उसके हिसाब से क्यों इसमें मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ कि डोनेशन सीट्स आते हैं जो डोनेशन देंगे उसके लिए कुछ हेल्प करते हैं। नहीं वी आर फोकसिंग, हमारे पूरा फोकस जो है बच्चों को जो है नीट में तैयारी करवाना। और वो बच्चे जो है 500, 550, 600 प्लस मार्क्स अगर लिए तो गवर्नमेंट सीट्स मिल जाते हैं। और बाकी बच्चे 450 के आसपास मिलते हैं तो हो सकता है कि डोनेशन भी थोड़ा बहुत देख के सीट देना पड़ता है। डोनेशन देना मतलब कि वो जो है स्टूडेंट की और कैपेसिटी और हमें चाहता है कि हम चाहते हैं कि बच्चे जो है 550 क्रॉस करें, 600 क्रॉस करें मार्क्स, ताकि मेरिट से जो है फ्री गवर्नमेंट सीट लेवे। तो उसी कोशिश शाहीन और सरा शाहीन का है। काफ़ी कॉलेजेस सभी कंपटीशन में हैं, तो आप स्टूडेंट को अप्रोच कैसे करते हो कि क्या फैसिलिटी? देखिए अनलेस अनटिल मतलब आप सर्विस मतलब सही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड गुड सर्विस, ये इससे मतलब कि दूसरा कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है। जब डोंट यूज मार्केटिंग टैक्टिक्स, देयर इज नो मार्केटिंग टैक्टिक्स, वी ऑनेस्टली डोंट बिलीव इन मार्केटिंग टैक्टिक्स। इट इज द प्रोडक्ट व्हिच शोज योर capacity, right? So our products are being showcased since 2 years.
सो हमारा ये क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि एवरी बैच में एक 100 में एटलीस्ट 10% विल गेट मेडिकल सीट्स. Why I'm asking, So sir, this because सना confidence कॉलेज is काफी there. टाइम से बंद जी, था, तो जी. लोगों के जहन में है कि सो दिस इज माउथ टू माउथ. Yeah, दिस ऑल that's what I'm पब्लिसिटी asking. जो है दिस गोज देखो माउथ टू शाहीन बिदर जो कामयाबी हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बताया कि 400, 450, 500 सीट जो है फ्री गवर्नमेंट मेडिकल सीट दे रहे हैं। उसी तरीके से जो है हुबली और नॉर्थ कनाडा के लिए एक सेंटर बना हुआ है। दिस इज सेकंड शाहीन, मतलब फर्स्ट अगर बिदर अगर शाहीन का हो तो सेकंड Campus. सारा शाहीन कैंपस। कैंपस. And Please, we this is a campus. are hoping that मतलब we want around 2000 students minimum PUC साइंस कि के हम लिए भी हर train साल कर यहाँ पर ट्रेन कर सके, और वही उसी तरह 400-500 बच्चों को हम लोग हर साल जो है मेडिकल सीट दिलावे। इसी के अप्रोच है, इसी के टारगेट रख के हम लोग आगे जा रहे हैं। ये जो हॉस्टल बना है ख़ास करके जो है मलकी साहब का ख्वाब था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अंदर 600 बच्चे ख़ास करके जो है, मैं समझता हूँ कि अगर 600 कैपेसिटी अगर हॉस्टल है उसमें 300-400 बच्चे जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीट की ख्वाहिश रखने वाले बच्चे यहाँ पर आके पढ़ने वाले हैं, चाहे वो बीजापुर से हो, चाहे हावेरी से हो, चाहे दावनगरे से हो। जितने भी मतलब कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि गरीब बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे, गौंडी, बारबेंडर, टेलर, इनकी बच्चे जो है टैलेंटेड रहते हैं, बहुत ही मतलब जो हुनर जोश रहता है, लेकिन जो कि बड़े बड़े मतलब कि जो है जितने भी आपको हमारे कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे के सीट नहीं ले सकते हो, तो उनके लिए हॉस्टल 1.5-2 लाख रुपया सिर्फ पढ़ने के लिए, और हॉस्टल के लिए 1.5 लाख रुपये अलग, इतना पैसा देके कोई नहीं कर सकते। तो ऐसा गरीब लोगों के लिए ख़ास करके हमने मतलब कि ये मलकी साहब ने ये हॉस्टल शुरू किया है, जहाँ पर अगर वाकई में मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो, गरीब स्टूडेंट्स हो, उनके लिए वेलकम है। आप ये हॉस्टल में रहिए, अच्छे से अच्छा इंटरनेशनल लेवल का हम लोगों ने रहने का इंतज़ाम किया, और खाने भी माशाल्लाह मतलब कि बहुत अच्छा खाना दे के आपको पढ़ाने के लिए मतलब कि हम लोग पूरे अच्छे से अच्छे फैकल्टीज लेक्चरर्स रखे। और मैं ख़ास ये बताऊं कि आजकल यूजीसी स्केल के अंदर हम लोग जो है पे कर रहे हैं लेक्चरर्स को, जो है यूपीयूसी के लेक्चरर्स को यूजीसी स्केल में हम लोग पे करके हम लोग रखे कि बेहतर से बेहतर जो है ट्यूशन देवे, बेहतर से बेहतर एजुकेशन देवे, ताकि मतलब जो है बच्चे नीट के लिए भी क्वालिफाई हो गए, सीईटी के लिए क्वालिफाई हो, और जेडब्ल्यू के लिए क्वालिफाई हो। सर फाइनली जॉब कैंपस इंटरव्यूज आपने कोई कंडक्ट किया है? कोई ऐसा कोई अचीवमेंट? एग्जैक्टली हमारा पैरामेडिकल कोर्सेस और बीएससी नर्सिंग लुलु के लिए भी लुलु वाले आके हम पर कैंपस इंटरव्यू लिए, एमएम जोशी हॉस्पिटल वाले कैंपस इंटरव्यू लेके जो है बहुत सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को, डीओटी स्टूडेंट्स को लिए। बीएससी नर्सिंग अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुचराय हॉस्पिटल वाले हमारा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स टेक ओवर कर रहे हैं। इस तरह हम लोग मतलब कि जो है बड़े पैमाने पर इंशाल्लाह अभी महाराष्ट्र से बहुत सारे कंपनी के साथ हमारा प्लेसमेंट के बारे में हमें वी वांट टू बोस्ट टू बी ऑनेस्टली, हुबली के पैरामेडिकल लैब्स जो हैं, अगर आप जाके देखें तो आप डायग्नोस्टिक लैब्स में कम से कम 2 डायग्नोस्टिक सना के मिलेंगे आपको। सर फाइनली जो सना मोहम्मद हुसैन मलगी चैरिटेबल फाउंडेशन उसका व्यू क्या है? हाँ, तो दिस आई विल एक्सप्लेन। सना मोहम्मद हुसैन मलगी चैरिटेबल फाउंडेशन जो बना है, उसके पीछे भी एक कहानी है, एक स्टोरी है छोटी, मैं आपको बताऊंगा छोटे से भी, जो स्मॉल टाइम आई जस्ट ब्रीफ यू। सी अब्बा जो हैं उनकी हिस्ट्री जो है, ही हैज़ गॉन थ्रू अ टफ टाइम। ओके, सो हमारे जो दादा थे, ही वाज उर्दू स्कूल टीचर। सो आउट ऑफ उनके 7 बच्चे, 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स। अब्बा इज़ द एल्डेस्ट सन, इनके ऊपर 2 बहन। अच्छा, तो एंड दे आर वेरी 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 पुअर। फ्रॉम उर्दू स्कूल टीचर बोले तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 15-20 रुपए कुछ सैलरी था दादा का उस टाइम पे। सो पढ़ाई तो हाई ज़्यादा मुश्किल था सबको पढ़ाना वगैरह, लेकिन अब्बा को ख्वाहिश थी, ये उनकी स्टोरी बता रहा हूँ आपको छोटे में। तो कैसा भी करके 10th लैमिंगटन से कर लिए, पास हो गए। उसके बाद में पीयूसी पढ़ना था, सो कैसा भी करके धारवाड़ गए, किसी स्टाफ के घर में रहे, उधर पीयूसी पढ़ लिए। पीयूसी के बाद में मैं अच्छा, हालांकि पीयूसी भी ही पास्ड इन फ्लाइंग कलर्स, वहाँ उस टाइम पे मेरिट सीट वगैरह तो नहीं थे। सो तभी क्या हो गया, तो पीयूसी पास होने के बाद में ही गॉट क्या बोलते, रेलवे में नौकरी मिल गई। सब लोग बोलने लग गए कि भाई रेलवे नौकरी है, क्या जाता हो, क्या पढ़ता एंड ऑल दैट करके। बट स्टिल उनको कुछ ख्वाहिश थी, नहीं, आई वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, आई वांट टू, मैं इंजीनियर बनना, मैं पढ़ना, मैं आगे कुछ और ये करना करके जोश था अब्बा को। सो उतने मुश्किल में भी कैसा भी करके बहुत कोशिश करे,
ये इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लेने, हालांकि लेकिन बहुत मुश्किल हुआ, कुछ कलेक्ट नहीं कर पाए। जैसा उन्होंने बताया कि 250 रुपये फ़ीस था, नहीं कलेक्ट कर पाए। तो वो कैसा ऐसा कलेक्ट करते करते कुछ 100 रुपये जमा हो गया। सो वो चलो 100 रुपये तो जमा हो गया करके वो डिप्लोमा जम गए। पढ़ते पढ़ते उनको पता चला कि बॉम्बे में दादा फजल बॉय और दादा बॉय चैरिटीज़ करके हैं, और HIMS बोट वाला चैरिटीज़, पारसी मुस्लिम से HIMS बोटा वाला चैरिटीज़। तो मैं वो उनको अप्लाई किए। सो वहाँ से उनको चैरिटी और स्टाइफंड मिला। सो वो पैसे आने के बाद में ही लेफ्ट डिप्लोमा, नेक्स्ट ईयर BUB 250 जमा करके इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन हो गए। BBB 4 साल स्कॉलरशिप आते गए और स्टाइफंड आते गया। ये सब उनकी वो चैरिटीज़ के वजह से हुआ। ओके, मैं क्यों ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि 50 साल के बाद में भी ही इज़ 86 नाउ। इट इज़ मोर देन ही इज़ फिनिश्ड हिज इंजीनियरिंग का, तो ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन 60 ईयर्स नाउ। ही स्टिल रिमेंबर दोज चैरिटीज़ नेम्स। याद रखिए, दादा भाई नाम के साथ पूरे चैरिटीज़ बोलते हो ना, HIMS बोटा वाला, वो कहाँ ही गूगल करे ढूंढना हमें अब। एंड वो और क्या वो दादा फजल बॉय एंड दादा बॉय चैरिटीज़। सी, एक आदमी को चैरिटीज़ से जो बेटा उसके दिल और दिमाग में जो ज़रूरत टाइम पे जो हेल्प मिला और उन्होंने जो अपना ड्रीम फिनिश करे, ही कुड नॉट फॉरगेट दैट नेम। यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट ही फील्स कि उनका भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कि फर्स्ट कॉलेज शुरू करे। वी हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, पैरामेडिकल के, B.Ed के, BSc, GNM, PUC, स्कूल वगैरह। सो चल रही है, अच्छा चल रही है। उधर चैरिटीज़ भी करती, डोनेशंस भी करती, फीस भी लेती। कितना हो सकता है मदद करने वाले को मदद भी कर रही हैं। क्या इस नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, कितना हो सकता है कोऑपरेट कर रही पेरेंट्स के साथ। इंस्टॉलमेंट दो, महीना दो, 3 महीने को एक बार। सी, व्हाट ऑल पॉसिबल है। कम्युनिटी के एक एंगल से आप मुझे पूछे तो कम्युनिटी को भी बनाना चाह रही, कई को कम्युनिटी को बनाना चाह रही, वो भी बता दिए सब लोग। क्योंकि अगर एजुकेशन इज़ द बेसिक, कम्युनिटी एजुकेशन अगर हुई तो उनका खुद का ये ग्रो होता है, कम्युनिटी ग्रो होता है। जी, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। हाँ, मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। इंडस्ट्री में भी आप हो सर। हाँ, सो ये इसके बाद में उनका इंटेंशन था कॉलेज हो गया, अभी हॉस्टल में रहे, बच्चे रहे, उसमें 50% चैरिटी, 50% फीस कलेक्ट करो। तो कई को 50% क्लियर मेंटेन करना नहीं, चलाना नहीं। 500 बच्चा का हॉस्टल चलाना, आप देखें कितना स्टैंडर्ड में बना है। फिर 500-600 स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, खाना पीना रहेगा। सो 50% से बच्चे कलेक्ट करेंगे पैसे, वही जो नॉन पेइंग पीपल हैं उनको पास ऑन करेंगे बेनिफिट्स। नॉन पेइंग स्टूडेंट्स गरीब हैं, अपाहिज हैं, यतीम हैं, दे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, रहेंगे शायद 50 साल के बाद में हम ना याद करेंगे, मलगी फाउंडेशन को याद करेंगे शायद, इंशाल्लाह। करेक्ट। सो दैट इज़ हिज इंटेंशन कि कितना हो सकता है। और मेजर थिंग, और एक मैं एज अ सन मैं बोल देता हूँ आपको, उनका ये है कि उनकी जो भी कमाई है उसमें 1/3 हिस्सा उन्होंने चैरिटी को देने के लिए डिसीजन लिया है। वो हम सब उनके साथ हैं। 1/3 उसका जो भी है, अब ये डिक्लेरेशन नहीं है कि कितना अमाउंट है करके, वो अल्लाह बेहतर जानता है। एक है। एंड सेकेंड, अब आपको दिखाए हम, वी आर एसोसिएटेड विद विवेकानंदा डम एंड डिसेबल एसोसिएशन। ओके, सो वहाँ पर 40 बच्चे हैं साहब, डफ एंड डम बच्चे हैं, विच आर पास्ड फ्रॉम 10th, हु हैव कम आफ्टर 10th। अब ले रहे हैं बच्चों को, हम छोटे बच्चे नहीं ले रहे हैं, 10th के बाद ही ले रहे हैं। वो गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप आके छोड़ देते हैं, इटको रिसरी लेनो, इटको तिरंतला नहीं वो करके। सो अब उसे क्या पढ़ना है, उसे बाबा तू ITI पढ़ता पढ़ो, तू PUC पढ़ता पढ़ो। पढ़ने के बाद साहब, बिलीव इट और नॉट, some of them have done IT and all that, they have all been appointed in Amazon, Flipkart. I have with proof our students. And एक साल हो गया उनका, almost more than a year now. 40 children are with us and almost 20 चले गए हैं बाहर। उनका रहना और खाना, believe it or not, ट्रस्टीज दे रहे हैं अपने पॉकेट से, completely free। और हर संडे अशरफ भाई पास स्पेशली उनको बिरयानी जाती है, नॉन वेज बिरयानी जो भी पकी रहती है एवरी संडे वो बच्चों को, ताकि उनको भी मैसेज और लॉट ऑफ थिंग्स भी उनको हम ऐसे। केरला में आई एम ऑलरेडी, केरला में मैं एक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज चला रहे हैं, जिसमें B.Pharm है, M.Pharm है और BSLP ऑडियो स्पीच थेरेपी का कोर्सेस है।
बेहतरीन मतलब कॉलेज है, तकरीबन 600 से 700 बच्चे जो वहाँ पर पढ़ाई हो रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम फार्मेसी कॉलेज जो जब्बार खान ओनली साहब ने जो कायम किया, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि जो है विवेकानंद सोसाइटी जहाँ पर डेफ एंड डिसेबल्ड के लिए, उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग एक एसोसिएट होते हुए जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड विद इट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। टीम अच्छी हो गई। टीम अच्छी हो गई, होटल इंडस्ट्री है, लेकिन आज मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिल रहा है कि खुद कुछ करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो एजुकेशन